afternoon, everyone. Welcome back to the topic we are going to discuss in this lecture. Today, I am Anupama Verma, going to teach you about computer fundamentals, and the topic is MS Word from Tirthankar Mahavir Institute of Management Technology. Moving towards the outlines of the content: introduction, components, preparation of document, editing and formatting, advanced features, page orientation. And today we are going to learn about some of the introduction of MS Word, some of the preparations of document and editing and formatting in MS Word. So first, what do you understand by a MS Word? MS Word is just like a application of, or it is a part of MS Office, or we can consider it as an application software. Basically, it enables users to generate and modify personal documents, professional documents, including correspondence reports, financial statements, electronic communications, and literal work. By default, Word 2010 saves documents with the .docx file format. Basically, this .docx is an extension of MS Word. Extension means this .doc indicates that the particular file is of Microsoft Word. This file belongs to the Microsoft Word. It is a tool for creating and editing documents and with useful features that make it even better for students, professionals, and individuals. Basically, what is the work of MS Word? It is basically used to design. Some of the professional documents, or we can say some of the articles, some of the newspapers, magazines. We can design all of these things on MS Word. There are the multiple applications, and the Microsoft Word can be utilized for various purposes. All these are the purposes of MS Word. First, to generate business papers that use diverse graphics such as images, charts and diagrams. Basically, जो भी थिंग्स रिलेटेड हैं हमारे बिजनेस से, उसमें डिजाइन करने के लिए कि कैसे चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, आपकी उसको बनाने के लिए, रील्स को बनाने के लिए हम बेसिकली MS Word को यूज करते हैं. Second, the purpose is to store and reuse pre-made content and formatted elements such as cover pages and sidebars. It is also used to make the cover pages which is required in the designation reports or the market survey reports or any other reports. Third is to generate correspondence and stationery for personal and business use. Fourth, to create many types of papers such as resumes or invitation cards. Resume is the basic need of MS Word. Basically, it is the basic purpose of MS Word, and in the college time or in the educations, the students are used to learn MS Word for this purposes only. Resumes or the invitation card. To generate a variety of written communications ranging from basic office memoranda to official legal copies and references papers. All these five are the purposes of MS Word and how you can use the MS Word with these purposes. Second is the start of a MS Word. There are the three basic types you can start a MS Word in your devices or the computer systems. In the computer system, first of all, go to the start button, then click on the all programs, then go to the Microsoft Office and then click on the Microsoft Word. Then your Microsoft entire window is open. Second, go to the start button, click on the all programs, then create a new Office document and select the journal tab and also a blank document. This is also a type of starting a MS Word. And the last, directly click on the right click on the desktop, there is a new option and you will find the Microsoft Word document. So here are the three types due to which you can start a Microsoft Word. Here are the components of MS Word. As you can see, Microsoft MS Word window has different types of components itself, due to which a Microsoft Word works. There are the title bar, toolbars, menu bar, view layout buttons, document area, ruler, status, active buttons, page, document view. All these are the components of MS Word, and in the brief you can see the image. This is basically a previous version of MS Word. Here you can see the title bar, menu bar, standard toolbar,
formatting toolbar, scroll bar, cursor, working area, status bar. Nowadays, we are working on the 2019 MS Word. This is the 2006 or the 7 version, the picture it have. We can do it practically in the today's class. So what do you understand by title bar? This displays the program's icon. Basically, the title bar indicates the title of the document, and also it has 3 buttons. The 3 buttons are the maximize button, minimize button, and the close button. These 3 are present in the title bar. Then moving downwards, there is a menu bar. This bar displays all kinds of operations of Microsoft Word. Each menu consists of sub-menus, and by clicking or selecting on these menus, a drop-down list will appear, and then you can click on that operations. So, menu bar contains some of the menus on its bar. Third bar is the toolbar. The toolbar is basically a bar where you can find various type of tools used in the MS Word, and you can also customize the toolbar according to your own choice. It has 30 icons. By directly clicking on a single click, you can directly use these tools in the Microsoft Word document. Next is document area. This is the area where a document is properly worked, where you can text the things, where all type of text are displayed for viewing and editing. Within the document area is flashing small vertical line called cursor or insertion point. So basically, a document area consists of some of the text and the cursor point. Next is the rulers. Rulers are also important component of the Microsoft Word, because it has 2 type of ruler, that is horizontal ruler and vertical ruler. Horizontal and vertical rulers are used to set the page, paragraph and column width. Next is the task pane. This provides shortcuts for creating a new document. Then there is a page layout. Page layout includes, there are the 4 types of layout in Microsoft Word, that is normal layout, print layout, slideshow layout and document layout. So all these layouts we will learn in the practical way. Okay. Status bar. This displays the information about the overall Microsoft Word. It includes the number of pages, the number of words you are using. See, all the things which gives the status of overall Microsoft Word document. A status bar includes these type of information. Third is scroll bar. The horizontal and vertical bar are present there, which is used to navigate the document from up and down or right and left. Browse bar. This is located just below the vertical scroll bar, and it is also used for navigation. So next is the preparation of document. How you are going to prepare your document in the MS Word application. There are the several steps to prepare a document in Microsoft Word, including like making a new document, saving the document, creating a document, or you can also close a document. All these things are used for preparing a document. So first of all, you have to open Microsoft Word, then create a new document. How you will create a new document? Just click on the blank document, start a new document. Next, enter the text. Click on the document and start entering the text with the keyboard. Basic text formatting, like you can change the text font size, font color, or you can indent the overall text, or you can indent the overall paragraph. Next is paragraph formatting. Here you are using all the alignments, indentations to make the balance in the Microsoft Word document. Then how to insert the elements such as charts, shapes you want to enter, or you want to enter some graphs, you want to enter some icons. So all these elements are present in the Microsoft Word application, and you can use these elements or insert the elements in the Microsoft Word document. Then the page layout, how to navigate the page layout, then the headers and footers, and then the spell check. All these stuff we are going to do practically during today's lecture. Save the document, additional formatting, print preview, save regularly, and finalize and share. So here are the terms how you can edit and format the
editing and format the Word document. How you can edit? Cut, copy, paste. There are some shortcut keys are there. Second, go back and redo with these shortcut keys. You can also find and replace the text over the Word document. And formatting is done by changing the font size, font type. You can do the bold, you can do the italic, and you can do the underline format. You can also use in the formatting. Next, paragraph formatting, where you can change the line space, you can change the indentation of the paragraph. You can also use some of the numbers and the bullet points, and also you can use the different styles. Before doing this, let's go and move to the Microsoft Word application. How you can start the Microsoft Word application. In this Android version, you can directly click on the search button and write here MS Word, and your MS Word will be open. Okay, so go to the blank document, click on the blank document, then you will find the entire window of the Microsoft Word. This is the proper entire window of the Microsoft Word. You can see here are the title bar, here are the menus, here are the toolbars. This white paper is over the document area. This is the red ribbon you are finding. This is known as the title bar of the Microsoft Word, and you can see there is a by default title bar is shown here, that is document 1. According to your choice, you can also name your document according to your choice. So in this ribbon you are finding some of the direct icons, like this is for saving, this is for saving the button, this is for redo, undo, and here are the options like minimize, maximize, and close the button. So next is where you can find file, home, WPS, insert, design, page layout, preferences, mailings, review and view. All these are the menus of Microsoft Word, and this bar is considered as a menu bar. Now moving towards these bars, these are the icons or the tools we can say which is present in the Microsoft Word, and you can directly click on these tools and your text will be and the document will be considered according to this tool. So here are the font size, the font type, bullets, numbers, alignments, line spacing. These are the styles you can use in your Microsoft Word. The find and replace options are also there, and also some format, printers and paste. So this is the advanced version of the Microsoft Word. Nowadays we are using this version. This version is known as the 2019 MS Word. So first you are going to learn how you are going to prepare your document. Go to the file menu. There are the 4 options here: create a document, open a document, save a document, and close a document. There are the 4 options, 4 basic operations you have to perform while preparing a document. So go to the file menu, click on the option new. Here you will get some of the choices. There are the choices. The first choice is blank document, and all these choices are the templates you have given. So according to your choice, if you want to make a party invitation, so you can go to this template. If you want to make a modules, if you want to make a brochure, if you want to make a document which is used for business purposes. So here are some of the templates, and a blank document is given in the by default. So if your choice is to choose these templates, you can choose these templates also. And if you want to work on the blank document, go to the blank document and then click on it. Then there a blank document will be created. So this is creating a new document. If you want to open an existing document, so go to the file menu, click on the option open. Here are some of the paths is given or the location is given for opening an existing document. So go to the computer, you want to go browse the files you want to open, for example, and then choose your particular file if it is present in this PC. So click on the option button and then the file will be open. Okay. So this is for opening a document. Then the next option is save. How to save a document? Go to the
in which place you want to save your document, then a pop-up message will be appear. Then you have to go give the name of your document. For example, I want to give Anupama. Okay, what document है? जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, you will find that there is an extension of .docx. So .docx is the extension of MS Word file. Okay. So choose your location wherever you want to choose. Save your file. For example, I want to save my file on the desktop. So this file will be saved. Click on the save button and the file will be saved. There is also another option, that is save as. So do you know what is the difference between save and save as? Save is the option where you can save the proper file, and save as is the option where you want to save the file which you can modify, or you want to change the location of the file. If you choose the option save as, then there also a pop-up message will be appear, and if you want to change the location of your file, then you can choose the option save as. So there is a thin difference between a save and a save as. If you want to save the file normally, you can choose the save option from the file menu, or you can directly use the shortcut key, that is Ctrl+S. And if you want to change the location of the file, or after editing and formatting of a file, then you can use the option save as. Okay, so here are the options close, there are the options print. You want to print your file, then the options will be arise in which format and which layout you want to print. So let's move towards this document area. Okay, now you are going to write a text. For example, introduction. Okay, so now you are going to do the editing and formatting of the document area. So if you want to change the font type and font size of the text, you can just select that text, choose the option from here. This is the font type option. Click on the Times New Roman. Here the Times New Roman will appear, and the font type will be changed. You can choose any font type according to your requirement. If you want to use Arial tag, then Arial tag will be used. If you want to use Calibri, then Calibri will be used. Okay, so this is the font type of text, that is considered also as a style of a text. Now you can change the size of the text also. So this part is the size of the text. Whenever you are going to use any application which belongs to the Microsoft Office, if you normally put your cursor here, then the description of that tool will be here. देखिए यहाँ पे आपने कर्सर पुट किया, आपको अपने आप उसका डिस्क्रिप्शन मिल गया, that this cursor, this part is belongs to the font style. ठीक है, now मैं कर्सर यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो मुझे पता लग गया कि ये जो टूल बार है ये फॉन्ट साइज के लिए यूज हो रहा है, और उसी के साथ साथ उसकी शॉर्टकट की भी गिवन है कि आप अपने फॉन्ट को या अपने टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई वांट टू 26, तो 26 विल बी देयर. ओके, बेसिक जो नॉर्मल साइज होता है वो 12 होता है किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. उसके बाद दिस इज द ऑप्शन वेयर यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड आल्सो डिक्रीज द फॉन्ट साइज. या तो आप डायरेक्टली इससे अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो 1 बाय 1 आपका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइज में. अगर आप डायरेक्टली यू वांट टू चेंज द लार्ज साइज ऑफ द फॉन्ट, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड यू कैन चूज द ऑप्शन 48. तो ये एकदम से 48 हो गया. सो यू कैन चूज दीस टू ऑप्शंस आल्सो. ओके, now moving towards this option. This option is used to change the case of operation. Cases means what? You want to make your text in a uppercase form, or in the lowercase form, or in the sentence case form. So if you choose this option, then there a drop down list will be appear, and it contains the 5 types of case arise are here. First, sentence case. Second, lower case, upper case. अब मैं यहाँ पे upper case choose करती हूँ. Upper case में आपने देखा
एग्जाम्पल भी गिवन है, अगर आप अपर केस चूज करते हो तो जितना भी टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो आपके सारे जो टेक्स्ट है, वो लेटर्स है, इसके अल्फाबेट्स के लेटर्स है, वो एकदम अपर केस में हो जाएंगे। देखिए इंट्रोडक्शन से अपर केस में आ गया। लोअर केस चूज करती हूँ तो सारे लोअर केस में हो गए। एंड इफ आई चूज सेंटेंस केस तो फर्स्ट इनिशियल टेक्स्ट जो है वो मेरा कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब मेरे लोअर केस में हो जाएंगे। सो दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द केस ऑफ द font or the text, we can say. Now moving towards this option, this is the option where you can bold your text और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। सो मैं Ctrl+B भी करती हूँ। ये सब चीजें तभी होंगी जब आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा होगा, या फिर आपने यहाँ से ऑप्शन चूज किया और यहाँ पे आपने 26 कर दिया, तो तब आप देखेंगे इसका साइज चेंज हो गया। या तो आप पहले ही अपना फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप और जितनी भी फॉर्मेटिंग है, एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, उसको पहले से ही सही करके रखें। अगर आपने वो नहीं करा है तो आप उसके बाद उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यू कैन चेंज दी ऑप्शंस हियर। ओके, अंडरस्टैंड? Now we have to bold the text. So I want to bold my text. I can directly use the shortcut key, that is Ctrl+B, or I can use this option, that is bold. तो मैंने क्या करा, text को select किया and I choose this bold text. आपने देखा ये bold हो गया, एकदम से highlight हो गया, black version में आ गया। If I want to do italic, तो मैं जैसे italic को use करता था तो मेरा थोड़ा सा text tilted form में हो जाएगा। So these are the options which is used for making our text bold, italic and underline. Okay? तो हम इसे normal way में ले आते हैं। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं कि जब हमें आपको अपनी लाइंस या ड्राइंग्स में कुछ स्ट्राइक थ्रू दिखाना हो, तो ये आपने स्ट्राइक थ्रू दिखा दिया और बता दें कि ये वर्ड नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड आई कैन यूज द अनदर वर्ड। तो ये आपने ऑप्शन चूज करा। These are the options for choosing the subscript and these are the options for using the superscript. आपको बताना हो जैसे 30th, we want to enter the date, we want to enter the date, that is 30th June. Okay? So ये आपने by default आपका ये ऑप्शन चूज हुआ है यहाँ पे। आपने देखा जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो by default it has the superscript option. Understand? अब मैं यहाँ पे चूज करूंगी सबस्क्रिप्ट, तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। So ये हमारा तब है जब हम स्क्वायर दिखाना चाहते हो या डेट को लिखना चाहते हो, यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना चाहते हो, तो हमें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है? दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द शेप्स ऑफ द साइज। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई वांट टू चेंज दी और आई वांट टू डू एनी स्टाइल ऑफ माय टेक्स्ट, सो आई कैन चूज दिस स्टाइल लाइक दिस ऑर्डर। ओके, आई कैन चूज दिस आल्सो। तो ये इस तरीके के फॉर्म में दिख जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं इफ यू वांट टू मेक योर टेक्स्ट इन अ वेरी इफेक्टिव एंड टाइपोग्राफी फॉर्म। नॉर्मल टेक्स्ट ना होके अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एडवांस दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा आप उसमें कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड चूज दिस ऑप्शन। What is this option? This is option basically for highlighting the color of the text. अब मुझे यहाँ से चेंज करना है, मैं इसे बेसिक फॉर्म में ले आती हूँ, मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में ले आती हूँ, इसको चूज ही नहीं करती हूँ, नॉर्मल फॉर्म में आगे मैं इसके कलर को चेंज करना चाहती हूँ, तो आई वांट टू चूज दिस। तो जो आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर है, बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है? इसमें आपका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है that will be changed after using this color. And if I choose no color, तो no color आपको ऑप्शन आ जाएगा। If I choose stop highlighting, तो stop highlighting। ये तभी होगा जब आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखोगे। तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैंने ऑप्शन चूज किया नो कलर, तो अपने आप कलर हट गया। ठीक है? अब बात आती है मैं अपने टेक्स्ट के अल्फाबेट्स का भी कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ऑप्शन क्या चूज करूंगी? दिस ऑप्शन। Basically this option is used to change the font color. जो आपका font है उस कलर को आप चेंज करना चाहते हो, आप डायरेक्टली अगर इसमें चूज करोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और अगर आपको कोई और चूज करना है तो go to this drop down list and here are the numerous type of colors you can use while changing your font color. So you can choose the any color you want to use, like brown or anything you want to choose according to your requirement. ठीक है? So basically ये आपका
क्या है, दिस एरिया इज ऑल बिलोंग्स टू द फॉन्ट एरिया। आप देख रहे हो आपका जो टूल बार है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपने देखा पहला पार्ट है क्लिपबोर्ड, दूसरा पार्ट है फॉन्ट, तीसरा पार्ट है पैराग्राफ, ये है आपका स्टाइल्स और ये है आपका कुछ एडिटिंग। दैट मींस ऑल दिस tools are used basically for the font, all these are tools are used for basically paragraph, these are the overall styles and these are for the editing। तो जितना भी ये हमारा वर्क था, ये जो हमने अभी करा, ये हमने फॉन्ट को करा। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई पैराग्राफ यहाँ पे रिटन है, अब मैं पैराग्राफ आपको फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, दिस इज माय पैराग्राफ, दिस इज द जर्नल आई एम टाइपिंग, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग। सो ये मेरे प्रॉपर 4 लाइंस का एक सिंगल पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है। ओके, मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर यू। ओके, सो ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, 5 लाइंस का है। अब मुझे यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलास यूज करने हैं, ये सारे टूल्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद देयर आर द 4 अलाइनमेंट्स गिवन, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, ये आपको दिख रहे हैं, एक लाइन लेफ्ट अलाइन, दिस इज द सेंटर अलाइन, दिस इज द राइट अलाइन एंड दिस इज द जस्टिफाई। If you want to make your paragraph in a very professional way, then you have to use the justify alignments, ठीक है। अगर आप लेफ्ट अलाइन को यूज करते हो तो आपने देखा कि आपका जो लेफ्ट वाला मार्जिन है वो इक्वल फॉर्म में है और जो आपके राइट वाला मार्जिन है वो आगे पीछे है। तो लेफ्ट अलाइन में क्या होता है, ओनली द लेफ्ट मार्जिन विल बी इन अ सीक्वेंस फॉर्म, ठीक है। मैं सेंटर चूज करूंगी तो मेरा सेंटर वाला मार्जिन जितना है वो मेरा सेंटर पे इक्वल रहेगा, बाकी साइड के आगे पीछे रहेंगे। और अगर मैं राइट अलाइनमेंट यूज करूंगी तो मेरा राइट का मार्जिन सेंटर रहेगा और बाकी इधर से आगे पीछे रहेंगे। तो ये मेरा एक जो डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। और अगर मैं जस्टिफाई यूज करूंगी तो मेरा सारा मार्जिन यहाँ से इक्वल रहेगा। ये तब रहेगा जब मेरे बहुत सारा पैराग्राफ रिटन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास I will make a proper document for you and then you can use these options। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। So for making a professional document, you have to make the document, you have to align your paragraph in a justify form। ये जो फोर्थ ऑप्शन होता है ना हमारा, जिसमें से सारे कॉर्नर्स आपने देखा होगा इक्वल फॉर्म में होंगे। So हम इस justify अलाइन को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका टेक्स्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्जिन्स, ठीक है। अब हम यूज करते हैं बुलेट्स। These are the bullets, these are the numbers you want to enter, these are the types of numbers you want to enter। For example, if you want to write a types of computer fundamental, तो आप उसमें types of computers 1 2 3 फॉर्म में बताओगे, तो आप क्या चूज करोगे, नंबर्स चूज करोगे। डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो तो ये 1 की फॉर्म में आ गया। अगर आप ऐसे चूज नहीं कर सकते तो आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज करोगे और हियर आर द नंबर्स, वैरायटी ऑफ नंबर्स आर गिवन हियर। क्या 1 2 3 भी यूज कर सकते हो, आप ABCD भी यूज कर सकते हो, कैपिटल ABCD भी यूज कर सकते हो, या फिर रोमन फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। दिस I to I is basically a Roman format, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऑल द टाइप्स विल बी गिवन हियर। तो आप इसको सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे, आपको 1 2 3 करना है तो आप डायरेक्टली 1 2 3 कर लोगे, ABCD करना है तो आपका ABCD फॉर्म में हो जाएगा। तो बेसिकली ये तब है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप्स दिखाने हो, कुछ नंबरिंग फॉर्म करनी हो, ठीक है। अब आप इसके बाद बुलेट्स को भी यूज कर सकते हो। बुलेट्स मींस कोई एडवांस क्रिएटिव आप अपने पॉइंट्स को बताना चाहते हो, कुछ 5 और 4 पॉइंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हो और ना क्रिएटिव फॉर्म, तो आप बुलेट्स फॉर्म को भी यूज कर सकते हो। आपने सिंपली यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, तो आपका ये डॉट वाला बुलेट्स आ जाएगा। और अगर आपको कोई और अलग डिजाइन चाहिए तो आप ये देख सकते हो, देयर इज अ बुलेट लाइब्रेरी गिवन हियर,
You can use this circle also, this square also. I can choose this option and this option and also this option. तो आप देख रहे हो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा क्रिएटिव फॉर्म में दिख गया है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपके बुलेट्स जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग में आता है, ये आपके आ गए नंबर्स और ये आपके आ गए सब नंबर्स। जब आपको किसी को सब नंबर्स में शो करने हो या आपको फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू शो द सब टाइप ऑफ अ टाइप, अगर आपका कोई टाइप्स गिवन है या कोई नंबर्स गिवन है और उसके भी सब नंबर्स आपको शो करने हैं, तब आप मल्टी लेवल लिस्ट, न्यू लेवल लिस्ट। और ये आपका क्या है, दिस ऑप्शन विल बी लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग बेसिकली यूज तब होता है जब आप अपनी दो लाइंस के बीच में कुछ स्पेस देना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलोगे तो आपके वेरियस नंबर्स ऑफ लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस गिवन होंगे। 3.0 तक ही आप अपनी लाइंस गिवन कर सकते हो, लाइन स्पेस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई चूज दिस 2.5, तो आपने देखा 2.5 का मार्जिन यहाँ पे लाइन का स्पेस हो गया, ठीक है। अगर आप यूज करते हो 1.5 तो 1.5 ऑप्शन, अगर आप चूज करते हो 1.0 तो 1.0। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द टू लाइंस। और जो नॉर्मल आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का जो जर्नल सिंटैक्स होता है वो बेसिकली 1.0 ही लाइन स्पेस को यूज कर सकता है। इसके आगे भी आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर सकते हो, रिमूव स्पेस बिफोर आफ्टर पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे करोगे, गो टू दिस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन द ऑप्शन लाइन स्पेस, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक आपके पास एकदम से आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा दैट दिस पॉपअप मैसेज जिसे हम बोलते हैं, इसमें कुछ बेसिकली यू कैन मॉडिफाई दीज लाइन स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपने यहाँ से चेंज कर दिया, आपको 4 और 5 चाहिए। आप देख रहे हो इसका प्रीव्यू नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप राइट में थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो आपका राइट में थोड़ा मार्जिन चेंज हो जाएगा। आप कम करना चाहते हो, आपकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। आप अलाइनमेंट्स को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप बॉडी टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्पेशल फर्स्ट लाइन हाईलाइन भी कर सकते हो, हैंगिंग लाइन भी कर सकते हो। साथ ही आप स्पेस को भी चूज कर सकते हो, ऑटो और 12। दिस इज द लाइन स्पेसिंग इज फॉर 1.5 लाइंस। आपने देखा ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। सो दिस इज ओवरऑल यू कैन चेंज और कस्टमाइज द लाइन स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये क्या है, लाइन एंड पेज ब्रेक का ऑप्शन है, ठीक है। विंडोज का, कीप विद टेक्स्ट का, पेज ब्रेक बिफोर का। तो हमारा जो बेसिक लेवल पे यूज होता है वो आपका क्या होता है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग वाला ऑप्शन। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया, गो टू द ओके बटन एंड देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन, तो आपका इसके अकॉर्डिंग लाइन स्पेस चेंज हो गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपको 1.0 ही लाइन स्पेस यूज करना है। अब इसके साथ चलते हैं ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका क्या है, बेसिकली ये ऑप्शन आपका क्या शो करता है, ये ऑप्शन शो करता है कि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा शेड देना चाहते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चूज करती हूँ जैसे ग्रे। तो आपने देखा अभी तक हम सिंगल टेक्स्ट को अपने उसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर रहे थे। अब आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग दिस पर्पल, तो आपने देखा पर्पल शो हो गया, ये देखिए ये वाला हो गया। तो जो भी आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है। और सिंपली यू कैन सेलेक्ट दिस एंड गो टू द नो कलर ऑप्शन, देन ऑप्शन नो कलर विल बी हियर, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप अपने बॉर्डर्स भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, ठीक है, या आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए या टॉप बॉर्डर चाहिए। आपने देखा दोनों बॉर्डर्स यहाँ लग गए, ठीक है। या फिर आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो कि आपको ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे शो हो गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हो, अपने पैराग्राफ में या फिर फॉन्ट में, ठीक है। यहाँ पे जाके आप चूज कर सकते हो कि आपको नो बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो कोई भी बॉर्डर चाहिए। ये क्या ऑप्शंस होते हैं, दीज आर बेसिकली इंडेंटिंग। इंडेंटेशन मतलब लाइन मार्जिन से थोड़ा सा आगे अपने टेक्स्ट को लिखना या फिर थोड़ा सा
नीचे अपने टेक्स्ट को लिखना, उसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे ही रखा है। मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, दैट इज डिक्रीजिंग द इंडेंट, एरो बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन को चूज करती हूँ, तो आप खुद देखोगे कि इसका ऑप्शन कर सकती हूँ इंक्रीज इंडेंट का, तो आपने देखा जो नॉर्मल मार्जिन है उससे थोड़ा सा फर्दर आपका जो पैराग्राफ है वो मूव हो चुका है। सो ये बेसिक्स आपके टूल्स हैं जो कि फॉन्ट पे यूज हो रहे हैं, पैराग्राफ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन अरेंज योर टेक्स्ट इन द अल्फाबेटिकल फॉर्म, दैट इज A to Z, ठीक है। एंड ये ऑप्शन आपका बेसिकली चूज होता है जब आप अपने पैराग्राफ के सिंबल्स को हाइड करना चाहते हो या उसे शो नहीं करना चाहते हो। सो ये हमारा टुडे यू हैव लर्न हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट द MS Word document, और also you can use the options like font size, font type, bold, italic, underline, and side by side you will also learn how to edit your paragraph and how to edit your text or format your paragraph or format the text, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आपके चूज हो रहे हैं। इसके बाद यू कैन आल्सो चूज द ऑप्शन दैट इज द शॉर्टकट कीज। द शॉर्टकट कीज लाइक Ctrl+C that is used for copying the document, Ctrl+X that is for cut and copy paste, जो आपका राइट क्लिक करके भी ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो, डायरेक्टली कट, कॉपी, font, paragraph, define, synonyms, translate, hyperlinks and new comments. So all these are options is used whenever you are doing the writing. Okay, so these are the options. These are the options you can use while creating and formatting the document. So in the previous we have learned the how to use this home button and the options which are available on the home tab. We have choose these basic options like font type, font size, underspace, underline, bold, italic. Want to change the case of the document. Now we are going to use the option that is insert option. So whenever we go to the menu insert, here are some of the options available here. That is how to change the cover page, how to make a blank page, how to insert the tables, how to insert the pictures, how to insert the shapes. All these options you are given here. These options will be inserted in the Word document. So first of all, in the initial stage, you are going to learn how to insert a table. So there are the three ways to insert a table in a Word document. First of all, open your Microsoft Word window or the blank document. Go to the insert option. Here you will find a table option and just click on this option. Then you will find a drop down list appear here. Okay, so सबसे पहले you are going to learn a drop down, what a drop down list have. So there are the rows and the columns given. टेबल में क्या होता है, rows and columns ही होते हैं। तो यहाँ पे by default कुछ rows and columns दे रखे हैं जिनको आप डायरेक्टली सिंगल ऑप्शंस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी rows and columns डॉक्यूमेंट पे बन रही है। तो आपने उन ऑप्शंस को चूज करा कि आपको कितनी, फॉर एग्जांपल आई वांट 4 rows and 3 columns. ये हमारी rows होती हैं, ये हमारी columns होती हैं। तो ठीक है, तो मैंने 4 columns को चूज करा एंड 4 rows को चूज करा एंड 2 columns को चूज करा। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो आपने देखा यहाँ पे 4 rows and 3 columns आ गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, जैसे मेरी ये columns यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गई, तो उस टेबल से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, like you want to change the style of the table, you want to change the shapes, you want to style the borders, you want to change the pen color, borders painter, header row, banded row, तो जितने भी ऑप्शंस आपके टेबल से रिलेटेड हैं वो ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, otherwise there is another option also, you can choose on this option that is insert table। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, this is the second way to insert a table. Click on the insert table, then a pop-up message will appear, dialog box जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा, how many number of columns and the rows you want to insert in the document. Okay, for example, I want to insert columns like 3 and I want to insert number of rows like 4. Okay, और यहाँ पे है
fixed column with auto fit of the contents and auto fit to window. ये these are the auto fit behavior. So हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारे टेबल साइज को चूज करना है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हमने वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दिया एंड वी विल चूज द ओके बटन। तो आपने देखा जहां मेरा कर्सर था वहां पे मेरी टेबल इंसर्ट हुई है, ठीक है। अब इसे मैं अनडू करती हूँ, फॉर एग्जांपल Ctrl+Z, ठीक है। मैं अपने कर्सर को यहाँ से हटा देती हूँ, मैं अपने कर्सर को यहाँ ऑप्शन चूज करती हूँ, आई विल गो मूव माय कर्सर हियर आउटर ऑफ दिस क्या कहते हैं टेबल। सो फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगी इंसर्ट टेबल, ठीक है। मैं इसको सेट करूंगी अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, आई हैव चूज दिस रिक्वायरमेंट, ओके एंड ओके बटन। तो आपने देखा एक और टेबल जस्ट इसके जैसे ही इंसर्ट हो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, द थर्ड वे टू इंसर्ट अ टेबल इज ड्रॉ टेबल। जैसे ही आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे चूज करोगे, एक जो कर्सर है आपका वो पेंसिल की तरह बन जाएगा, ठीक है। योर कर्सर विल बिकम अ पेंसिल हियर। देखो आपका कर्सर दिख रहा है, कर्सर की फॉर्म में ना दिख के वो ये होती है, देखो कर्सर की फॉर्म जैसे आपको ऊपर दिख रही है जो बेसिक फॉर्म होती है। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को चूज करा हुआ है ड्रॉ टेबल को, तो मेरा जो कर्सर है वो पेंसिल की फॉर्म में बन जाएगा और मैं इस माउस के थ्रू अपने कर्सर को मूव कराऊंगी। मैं जैसे ही मूव करा रही तो आपने देखा एक रो एक कॉलम बन रही है। तो ये जो रो एंड कॉलम है ये हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यहाँ पे एक रो एंड कॉलम चूज कर लूंगी, तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इसमें क्या चूज करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम सीधे ऑप्शंस को रोज एंड कॉलम्स यहाँ से डायरेक्टली चूज कर लेते हैं या फिर इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, ओके। मैं इस टेबल को डिलीट भी कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कट दिस टेबल, देखो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है कट, ओके। तो ये मेरी टेबल कट हो गई है। राइट क्लिक किया आपने, पहले इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आपका ऑप्शन अवेलेबल हुआ कट। तो ये मेरी ओवरऑल जितनी भी टेबल है मेरी पूरी, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ बाय सेलेक्टिंग दिस ओवरऑल। तो आपने देखा ये पूरी टेबल डिलीट हो गई। अब इसमें आपके टेबल्स की स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टाइल चूज करना है वो आप इन स्टाइल्स को चूज कर सकते हो यहाँ पे जाके टेबल स्टाइल्स में जाके। तो मैंने ये टेबल को चूज किया, तो देखिए मेरा जो टेबल का स्टाइल है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, टेबल के स्टाइल्स को बदलने के लिए है ये जो ऑप्शन है आपका टेबल स्टाइल। आप येलो भी चूज कर सकते हो, आप ग्रीन भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या है, अब मैं यहाँ पे अपने टेबल के बॉर्डर्स भी बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ऑप्शंस को चूज करूंगी, तो मैं शेड क्या है मैं इसके बदल दूंगी बॉर्डर स्टाइल। तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पेंट दिस बॉर्डर, ओके। तो आपने देखा ये बॉर्डर्स की स्टाइल को अपना क्लिक होके जैसे मैं बॉर्डर्स को यूज करूंगी तो ये बॉर्डर्स अपने आप आ जाएंगी, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो इसके चारों तरफ ये बॉर्डर्स हो गए। तो मैंने इस पूरी ओवरऑल को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स को चूज किया। या तो मैं ये ऑप्शन चूज कर सकती हूँ बॉर्डर का, मेरा ये ऑप्शन हो गया है जैसे ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब मैं इसके बाद बॉर्डर्स की स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं बॉर्डर स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ पे क्या है, there are the numerous numbers of border style, like you can do the double lines or you can choose the ये आपका ऑप्शन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आपने इसको यूज करा तो आपकी डबल लाइंस हो गई। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट द थिंग। आप अपने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और बॉर्डर स्टाइल को चूज किया ऑरेंज, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऑरेंज हो जाएगा। तो ये बॉर्डर स्टाइल आप ऑरेंज को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी टेबल आपकी बन गई है। ये देखिए आप देख रहे हो, जस्ट अ single click you are changing the style of the borders, okay। अब ऑप्शन आता है आपका कि इस टेबल में टेक्स्ट को कैसे एंटर कराया जाए। या तो आप डायरेक्टली इस पे डबल क्लिक करके आपका कर्सर इस टेबल के अंदर शो होने लगेगा, आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है वो कर्सर। या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन आल्सो डू द राइट क्लिक, चूज द ऑप्शन इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है। आप ऑप्शन चूज कर सकते हो यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन। तो जो भी आपका टेक्स्ट है आपको अपना टेक्स्ट
जिस अकॉर्डिंग चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे सीरियल नंबर यूज करा, ठीक है। उसके बाद मैंने टैब यूज करा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम यूज करा, ठीक है। उसके बाद आपने चूज करा सेक्शन एंड उसके बाद मार्क्स। ओके, तो ये मेरा हेडिंग हो गए मेरे टेबल्स के, और यहाँ पे मैं अपने टेबल्स के जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पे एंटर करा सकती हूँ बाय जस्ट डूइंग अ डबल क्लिक हियर। तो ये मेरा टेबल यूज इंसर्ट हो गया मेरे डॉक्यूमेंट में, और आप इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट्स इसमें डाल सकते हो, आप इसके बॉर्डर्स को स्टाइल कर सकते हो, आप इसके जो ओवरऑल टेबल का स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो बाय गोइंग इन दिस डिजाइन लेआउट, ठीक है। ये जो आपका डिजाइन लेआउट है, डिजाइन ऑप्शन, यहाँ से आपके सारा जो भी जितना भी डिजाइन है टेबल का वो चेंज हो सकता है। अब जो ये ऑप्शन है लेआउट, ये लेआउट ऑप्शन क्या करता है, ये आपकी सारी इसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है कि आपको क्या करना है। आपको फॉर एग्जांपल एक रो इंसर्ट करानी है, एक रो डिलीट करानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं यहाँ पे अपनी रो को कि आपको रो कहाँ पे इंसर्ट करानी है, या तो ऊपर या नीचे। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है लेआउट में जाके कि मुझे जो रो है वो अब इंसर्ट करानी है, तो आई विल चूज दिस ऑप्शन। और आपने देखा एक रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई। और यू कैन आल्सो चूज द ऑप्शन इंसर्ट बिलो, तो आपने देखा बिलो हो गई। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, आपने देखा लेफ्ट में इंसर्ट हो गई, तो वो बहुत सारी रोज हो गई, ठीक है। और ऐसे भी आप इंसर्ट करा सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट किया इस पूरी रो को, ठीक है। आपने इस पे राइट क्लिक किया, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, कट कॉपी तो आपको पता ही है, दीज आर द बेसिक ऑप्शंस यू कैन यूज बाय यूजिंग दिस कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद एक ऑप्शन आता है इंसर्ट, जैसे ही आप इस पे यूज करोगे तो यहाँ पर भी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके जो आपकी लेआउट मेन्यू में अवेलेबल है, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हो। डिलीट अ सेल, आपको डिलीट करनी है तो वो जैसे आपने डिलीट सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। दीज आर द रोज, जो भी हमारे रोज एंड कॉलम्स का, जो भी हमारे रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उस पर्टिकुलर बार को हम सेल बोलते हैं। और अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डिलीट सेल, तो एक पॉपअप मैसेज अपीयर होगा, वो हमसे पूछेगा which type of cell you want to delete। अगर आप सेल को डिलीट करते हो तो आप सारी सेल्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हो, या सारी सेल्स को आप ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, या आप डिलीट यू वांट टू डिलीट द एंटायर रो और यू वांट टू डिलीट द एंटायर कॉलम। तो मैं क्या ऑप्शन चूज करूंगी, मुझे ये पूरी रो ही हटानी है, तो मैं ऑप्शन चूज करूंगी डिलीट एंटायर रो। जैसे मैंने इस ऑप्शन को चूज करा, ओके बटन पे क्लिक किया, तो मेरी वो रो आपने देखा डिलीट हो गई। सो दिस इज द ऑप्शन यू वांट टू चूज व्हेनेवर यू आर डूइंग अ राइट क्लिक ऑन द रोज एंड द कॉलम्स। ओके, ये बॉर्डर स्टाइल्स आपके यहाँ भी शो होगा जो आपके डिजाइन में शो हो रहे थे। टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव टू चूज दिस, you want to change the direction of this text, okay, right click on this, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन आपने चूज करा ये वाला, तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसे शो होगा, ओके। सो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। न्यूमरस नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस और ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to just simply text something or simply make a paragraph on the document and try using all these operations or all these functions which is installed pre-inbuilt in this menu bar। जितना भी आपका ये menu bar है, आपकी एक बार को यही तो लगेगा कि मेरा टेक्स्ट खराब हो गया या मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो खराब हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको उससे पता लगेगा कि आप जिस ऑप्शन, अच्छा इस ऑप्शन को यूज करने से ये होता है, अच्छा इस ऑप्शन को यूज करने से ये होता है। तो अभी हमने क्या करा, हमने होम मेन्यू के ऑप्शंस को चूज करा और इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स को इंसर्ट कैसे कराते हैं इस ऑप्शन को। सो आई हैव चूज दिस ऑप्शन। अब ये तो हमारी टेबल इंसर्ट हो गई, अब मैं इस टेबल को डिलीट भी करा सकती हूँ, ठीक है। अब डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, दिस इज द डायलॉग बॉक्स व्हिच विल आस्क समथिंग कि फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम योर डेस्कटॉप। जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हो या कोई भी
सॉरी आप अपने कंप्यूटर के कौन से एरिया से, कौन से लोकेशन से उस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, चूज दैट लोकेशन, गो टू दैट लोकेशन। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू दिस लोकेशन, यहाँ पे पिक्चर्स का लोकेशन होगा, दैट इज स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कैमरा रोल, नो पिक्चर्स आर हियर। तो मेरी जो पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब मैं इस पिक्चर को और भी तरीके से फॉर्मेट कर सकती हूँ। देयर आर द न्यूमरस ऑप्शंस टू फॉर्मेट द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली यू कैन एडजस्ट द पिक्चर और द साइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर नीड क्या है, आप इसको इसके साइज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये ऑप्शन कर्सर छोटा हो गया तो आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब इसमें क्या है, आपके ऑप्शंस अराइज हो गए कि आप अपने पिक्चर के फॉर्मेट को बदलना चाहते हो, आप अपने पिक्चर को हाईलाइट करना चाहते हो। देखो हाईलाइट हो रहा है, नीचे कस्टमाइज हो रहा है, यहाँ बॉर्डर्स आ गए हैं। सो ये क्या है, आपके पिक्चर का स्टाइल है। अगर कोई भी चीज आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करा रहे हो, चाहे वो आपकी टेबल हो, पिक्चर्स हो, charts हो, shapes हो, whatever you want to going to insert in the Word document, that picture or table has their its own properties. You can also change those. You can also change the style of the pictures or the tables you want to change them. Okay, so आपको क्या हुआ, आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन है। चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हो, कंप्रेस मींस दैट यू वांट टू डिक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग ऑफ द पिक्चर्स। ओके, यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर, तो ये देखिए देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स आर गिवन हियर। फॉर एग्जांपल आई हैव चूज दिस ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू हो गया। इफ यू वांट टू ऐड द आर्टिस्टिक इफेक्ट्स इन योर पिक्चर्स, आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है जिसमें भी आपको लग रहा है कि आप कोई भी डायग्राम है, फॉर एग्जांपल दिस ऑप्शन, तो ये देखिए आप मेरा जो पिक्चर का पूरा स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। कीप द चेंजेस, नो आई डोंट वांट टू कीप द चेंजेस, आई वांट टू डिस्कार्ड ऑल द चेंजेस, तो उसके बैकग्राउंड के चेंजेस को भी आपने चेंज कर दिया। अब ये तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, तो आपके पिक्चर का जो स्टाइल है वो आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस, आप देख रहे हो जैसे मैं इन पे आई एम ओनली चूजिंग दीज ऑप्शन, आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन दीज ऑप्शंस, मैं सिर्फ अपना कर्सर प्लेस कर रही हूँ इन ऑप्शन पे, तो ही मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। सो ये सारे स्टाइल्स हैं अपनी पिक्चर के स्टाइल्स को बदलने के लिए। तो मैंने अगर चूज करना है तो ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद यू वांट टू ऐड द बॉर्डर इन द पिक्चर, तो दिस ऑप्शन इज हियर फॉर चेंजिंग द बॉर्डर, ठीक है। पिक्चर के बॉर्डर को बदलना है, मैंने फॉर एग्जांपल ब्राउन ले लिया, तो आप देख रहे हो हल्का सा ब्राउन बॉर्डर आपकी पिक्चर में आ गया है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, नो अप्लाई तो नो अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर के इफेक्ट को बदल सकते हो, आप पिक्चर में शेडो ला सकते हो, उस पिक्चर की ग्लो कर सकते हो, उस पिक्चर को ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, देखो ये ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ठीक है। या फिर आप चूज कर सकते हो प्री सेट्स, जैसे आपने अपने 3D इमेजेस दिखाया है, ये वाला इमेजेस दिखाया है, ये सारे आपके प्रीसेट इमेजेस हैं, ठीक है। शैडो फैलानी है आपको पिक्चर्स में, तो आप इन शैडो को यूज कर सकते हो, इसके भी न्यूमरस ऑप्शंस हैं। आपको पिक्चर की रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो देखो रिफ्लेक्शन आपकी शो में, मैंने वाला ऑप्शन चूज किया, ये पिक्चर की रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स हैं पिक्चर्स में, ठीक है। आप उसके बाद ग्लो करना चाहते हो अपनी पिक्चर को, तो फॉर एग्जांपल दिस ऑप्शन है, तो आपकी पिक्चर का ग्लो हो गया, आप देख रहे हो ये ग्लो यहाँ पे शो हो गया है। सॉफ्ट एजेस बनाना चाहते हो, ये देखिए 2.5 3.5 जो भी एजेस यहाँ पे शो हो रही है उसको सॉफ्ट, दैट मींस दैट एजेस ऑफ द पिक्चर विल बिकम इन अ वेरी ब्लर फॉर्म, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे ऑप्शन चूज हो जाएगा, तो मैंने इसे 10 चूज करा, तो देखिए चारों तरफ उसके एकदम ब्लर ऑप्शन यूज होने लगे हैं, तो ये आपका क्या है सॉफ्ट एजेस का। बी लेवल की आप चूज करना चाहते हो जो आपके फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्पसेस में यूज होता है, तो बी लेवल के ऑप्शंस यहाँ पे चूज हो गए हैं। और लास्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज 3D रोटेशंस, तो ये 3D रोटेशंस की फॉर्म में 3D फॉर्म में आप
अपनी पिक्चर्स को शो करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। सो ऑल दीज आर दी पिक्चर इफेक्ट्स यू आर गोइंग टू चेंज इन दी डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद आ जाता है पिक्चर का लेआउट। पिक्चर का लेआउट आपको कैसा रखना है, ठीक है। लेआउट फॉर एग्जांपल ऐसे रखना है, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट लाना है, या फिर मैं ये वाला फॉर्म रखना चाहती हूँ, उसके साथ में टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ। पिक्चर को एक अलग फॉर्मेट में दिखा दिया कि आप उनकी पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट सेंटर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इन आप लेआउट को भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है पोजीशंस का, कि आप अपनी जो यहाँ पे पिक्चर्स की लाइंस है इसके पोजीशंस को चेंज करना चाहते हो, या पिक्चर्स के अंदर जो लिखा है उसके टेक्स्ट को आप यूज करना चाहते हो। So overall all these things are related to the picture। तो हमने दो चीजें इंसर्ट कराई। सबसे पहले हमने इंसर्ट कराया टेबल, उसके बाद हमने इंसर्ट कराया पिक्चर्स, ठीक है। टेबल आपकी क्या है, आप जैसे टेबल ऑप्शंस के अनुसार यूज करा सकते हो। तो टेबल आपकी 3 वेज में इंसर्ट हो सकती है। पहला, डायरेक्टली क्लिक ऑन द रोज एंड द कॉलम्स। आपने जैसे ही रोज एंड कॉलम्स पे चूज किया तो आपकी डायरेक्टली वो टेबल्स इंसर्ट हो गई। दूसरा क्या है, choose the option insert a table, and that insert a table will be asked how many columns and how many numbers you want to, rows or the columns you want to insert in a table। And the third way is directly drawing a table। आप कर्सर के थ्रू अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो these are the 3 ways to insert a table, and after inserting a table you will find some of the features or the functions or the operations which is related to the table। You can change the style of the table, you can change the borders of the table, the effects of the table। After that you have inserted the pictures। यहाँ आपने देखा होगा पिक्चर्स को इंसर्ट करने का तरीका क्या है। गो टू द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक ऑन द ऑप्शन पिक्चर्स। उसके बाद आप जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स will appear and it will ask how to from where you want to insert the picture from the computer device। Okay, and after that inserting the pictures आपके फॉर्मेट गिवन हो जाएंगे। You can also change the style of the pictures also, the borders of the picture, the effects of the picture, their color, their artistic effects। So everything, if you want to make your picture creative, you can use these options। So ये आपके आज 2 चीजें हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। Editing and formatting include all the font size, font type, font case, paragraph alignments। These are the options available in the editing and formatting। These are the basic options, and then the two things we have inserted, that is pictures and the tables। So आज हमने यही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम पेज लेआउट को देखना है, कैसे डिजाइन्स को देखना है, ठीक है। कैसे हमें डिजाइन्स को देखना है, कैसे पेज लेआउट को देखना है। सो दीज आर द ऑप्शंस यू आर गोइंग टू लर्न इन दी नेक्स्ट क्लास। सो टुडे वी हैव डन द बेसिक फंक्शंस ऑफ द MS Office Word, that is creating the documents, save the document, open the document, close the document, that is preparing a document, second editing and formatting in the document। Thank you all of you।